आज हम लोग लेसन 2 पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल 2 का। सबसे पहले आता है ग्रामर। ग्रामर में है आर्टिकल पार्टिटिव, पार्टिटिव आर्टिकल्स। उसमें से ड्यू तब लगाएंगे जब वर्ड मैस्कुलिन सिंगुलर होगा। जैसे ड्यू गातो सम केक, ड्यू पॉन सम ब्रेड, ड्यू बर सम बटर, ड्यू सुक्र सम सुगर, ड्यू फ्रोमाज सम चीज। ये जितने भी वर्ड्स है ये ई एंडिंग है, ध्यान रखना है। फिर भी मैस्कुलिन है। ये भी ई एंडिंग है, मैस्कुलिन है। और फ्रोमाज भी ई एंडिंग है बट मैस्कुलिन है। इसको आपको याद रखना है। देन कम्स डीई एल अपोस्ट्रोफी प्लस वावेल स्टार्टिंग सिंगुलर लाइक द लांक्र सम इंक, द लो सम वाटर। फिर अगला है डीई एल ए प्लस फेमिनिन सिंगुलर, द सलाद सम सलाद, द लबियान सम मीट। और इसके बाद है प्लूरल डीई एस प्लस प्लूरल like they own some apples, they got to some cakes, they provide some cheeses। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि हमें डीई देखना है। डीई का क्या, ये डीयू डीई एस डीई एल अपोस्ट्रोफी और डीई एल ए डीई में कन्वर्ट हो सकते हैं? यस। आंसर बहुत क्लियर है इसका कि जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस है, ज ज मांझ, सपोज ये सेंटेंस है ज मांझ ड्यू पॉन्ग, और इस सेंटेंस को हम नेगेटिव लिखना चाहें तो ज न मांझ पा, और यहाँ पर ये द पा हो गया है। तो सारे पार्टिटिव ये जो हमने पढ़ा अभी तक, ड्यू दला डीईएस, ये सारे डीई में कन्वर्ट तब हो जाएंगे जब सेंटेंस नेगेटिव होगा। ठीक है। इसका एक केस है जब एत्र वर्ब होगी तो ये चेंज नहीं होंगे, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं, हम लेसन पढ़ते हैं और चीजें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब आता है डिफिकल्ट वर्ड्स। तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स गिवन है। आंक्र इज इंक, दमरी टू लिव, ये इसकी इक्विवेलेंट वर्ब होगी अबिटे वीब्र, शेयर डियर, वजूद वी टुडे, पास्क बिकॉज, les autres the others, souvent means often, liberté is freedom, Angleterre England, com like arise, como talebू हाउ आर यू। ध्यान रखना है, इसको कोमो आलेबू नहीं पढ़ना है, इट इज कोमो तालेबू, यहाँ पर लिंकिंग हो जाती है। देन मे मीन्स बट, मलाद इज सिक, की मीन्स हु विच दैट, नव मीन्स नेफ्यू, envoyez moi means send me, s'il vous plaît please, l'argent money, timbre means stamp, encre means ink, assis seated or sitting। तो ये थे डिफिकल्ट वर्ड्स। अब इनका यूज करके हम ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। traduisez en anglais, यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। Arthur est assis dans sa chambre devant une petite table। Arthur is seated in his room in front of a small table। Sur la table, il y a du papier et des enveloppes। Sur la table means on the table. There are some papers and some envelopes. Il y a aussi un stylo et de l'encre. There is also a pen and some ink। Arthur écrit une lettre à son oncle। Arthur is writing a letter to his uncle qui demeure à Paris, who lives in Paris। Voici la lettre d'Arthur. Here is the letter of Arthur. Mon cher uncle, my dear uncle, je ne suis pas à l'école aujourd'hui. I'm not in school today. Parce que c'est samedi, because it is Saturday। Mais les autres jours de la semaine, je vais au lycée. But other days of the week, I go to the school. Lycée is grammar school. Nous étudions l'histoire. We study the history, la géographie, les mathématiques, the mathematics, l'anglais, English, et le français, and the French। J'aime bien les langues. I love much, or I adore the language. Mais je n'aime pas les mathématiques, but I don't like the mathematics। L'histoire est aussi très intéressante. The history is also very interesting। Notre professeur parle souvent de la France à ses étudiants। Our teacher always, souvent means often, speaks about the France to his students।
Dans notre livre d'histoire, in our book of history, il y a des images qui montrent les faillettes et des Rochambeau. Dans notre livre d'histoire, in our history book, there are some pictures that show the Fayette et le Rochambeau. These are names of the places. Les Français comme les Anglais aiment la liberté. The French people, like the English people, love the freedom. Est-ce que les petits garçons en France étudient l'anglais à l'école? Do the small children in France study the English in school? Est-ce qu'ils étudient aussi l'histoire de l'Angleterre? Do they study also the history of England? यहां तक पूरी तरह क्लियर होगा। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं। ओके, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। Est-ce qu'ils aiment les Anglais? Do they love English people? Ont-ils des écoles comme nos lycées? Do they have some schools like our grammar schools? Y a-t-il à Paris des cinémas et des théâtres comme en Angleterre? Are there in Paris some cinema and some theaters as in England? Como allez-vous, mon cher uncle? How are you, my dear uncle? Mes parents vont très bien, mais ma sœur est malade. My parents are very well, but my sister is sick. Votre neveu, qui aime beaucoup son cher uncle. Your nephew, who loves a lot his dear uncle. Arthur. PS. envoyez-moi, यहां तक लेटर खत्म हो गया था तो वहां पर ये एक्स्ट्रा लिखना था, इसलिए उसने पोस्ट स्क्रिप्टम, उसका मतलब होता है आफ्टर what has been written. So letter is already completed. Now he did not mention that thing. So he is going to mention. उसको क्या चाहिए? some कुछ पैसा चाहिए. अब वही मौसिल बुक प्ले send me please the l'argent में ताम्र some money for my stamps parce que les timbres sont très chers en Angleterre because the stamps are very costly in England. तो यहां तक पूरी तरह बात आपको समझ में आ गई। तो हम आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर वही जो हमने पढ़ा था, पार्टिसिप आर्टिकल्स द्विदला लगाना है, जिस वर्ड को देखकर कि ये प्लूरल है तो डीईएस, ये वावल से स्टार्ट हो रहा है तो डीई एल अपोस्ट्रोफी, मैस्कुलिन है तो डीयू, मैस्कुलिन है डीयू, यहाँ पर फेमिनिन है तो दला, सलाद, फेमिनिन है दला, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर डीई लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये ते मैस्कुलिन है तो डीयू, यहाँ पर प्लूरल है दे, ये भी ते। यहाँ पर गातो मैस्कुलिन है तो ड्यू, यहाँ पर डी एल अपोस्ट्रोफी, ये डी यू, यहाँ पर डी एल अपोस्ट्रोफी, यहाँ पर डी यू, देन डी यू, ये भी डी यू, और यहाँ पर ये वावल से स्टार्ट हो रहा है और म्यूट एच या वावल हो तो एल अपोस्ट्रोफी लगेगा, तो ये दल टी ई एल अपोस्ट्रोफी लग जाएगा, दलवील, यहाँ पर भी वही हो जाएगा डी ई एल अपोस्ट्रोफी। यहाँ पर एक दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, लाइक पर, स्यूख्रते, कफे, फ्रोमाज, पोताज, तेयात्र, फ्यूफेत्र, ये सारे मैस्कुलिन वर्ड्स होते हैं, इसको ध्यान रखना है क्योंकि फेमिनिन कंसीडर करके आप डला इनके पीछे लगा दोगे वो गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगले वाले में देखना है कि ये जनरल सेंस है या पार्टिसिपिव सेंस है। जनरल सेंस में डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे लला ले, पार्टिसिपिव सेंस होगा तो उसमें हम द्वितला लगाएंगे। यहाँ पर जनरली हम वर्ब ए में लगाएं, प्रेफरे लगाएं, डिजिरे लगाएं तो वहां पर हम पार्थिव नहीं लगाते। जेम, यहाँ ए में वर्ब लगे हुए तो ये एल ई एस हो जाएगा, यहाँ पर भी एल ई एस होगा, यहाँ पर यहाँ फिर से ए में वर्ब लगे हुए एल अपोस्ट्रोफी होगा, यहाँ पर होगा अब ये पार्टिसिप है तो डी ई एल अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, लिगार्सो नैम्पा, यहाँ पर एल अपोस्ट्रोफी आएगा, लेफ्रांस से हाँ, यहाँ पर पार्टिसिप है डी एस हो जाएगा, और कॉम यहाँ पर the French people have some schools like the English people. तो लेफ्ट से on des écoles comme les Anglais, यहाँ पर एलियस आएगा, जनरल सेंस है, ब्रिटिश पीपल, एंड ils ont aussi, या फिर से पार्टिसिप है दे théâtre et des cinéma, je n'aime pas, यहाँ पर le théâtre mais j'aime le cinéma। nous étudions, सब्जेक्ट्स हैं स्कूल सब्जेक्ट्स में डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, la géographie, les mathématiques, माई सिस्टर स्टडीज, या फिर लैंग्वेज है फ्रांसे ए l'anglais, एल अपोस्ट्रोफी। ठीक है, इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल्स आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल ल ला ले होते हैं जिनका यूज आपने देख लिया। वही चीज जो भी मैंने बताया कि आपको देखना है कि जनरल सेंस में है
तो ला ले लगाएंगे। जैसे डेफिनेट आर्टिकल की यूज सेंटेंस को बिगिन करने के लिए लगाया लब ड्यू ल बर ए bon, द बटर इज गुड बट ज मांस ड्यू पर। ये जनरल सेंस नहीं है, पार्टिसिप सेंस है। आफ्टर वर्ड्स ऑफ रेफरेंस ए में प्रेफरे गूते देतेस्ते अदोरे, इनके बाद आपको जनरली अवॉइड करना है कि आप पार्टिसिप लगाएं। तो क्या यूज करना है फिर? डेफिनेट आर्टिकल जैम से। लेकिन जब बोआ ड्यू थे, ये पार्टिसिप सेंस है। और स्कूल सब्जेक्ट्स के पहले जैसा कि मैंने बताया ही है कि आपको डेफिनेट आर्टिकल ही लगाने हैं, मैथमेटिक, सियांस, लॉन्गले। इसके बाद बात आती है ट्रांसलेशन की, जिसमें से हमें इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, जैसे अपिए मो यूथिल का मतलब हुआ यूज वर्ड्स आखिर इंक टैम्प स्टैम्प लॉन्ग लैंग्वेज आर मनी ट्रांसलेट फ्रेंच पीपल। ये प्लूरल भी हो सकता है, आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। आंग्ले ब्रिटिश पीपल, अंदर एचयूडीए टू स्टडी। ठीक है, ध्यान रखना है जब हम स्मॉल लेटर में फ्रांसीसी लिखते हैं तो ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब या तो लाइक ललीवर फ्रांसीसी फ्रेंच को, लेकिन कैपिटल लेटर में जब लिखेंगे ना यही चीज, तो वो पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी। यही चीज आंग्ले के साथ भी है। ANGLAIS आपने लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, बट ये कैपिटल कर लीजिए ANGLAIS, ये वहां के पीपल को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर वही बात हमें ध्यान देनी है। अब हम ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव some paper and some ink. J'ai du papier et de l'encre. Have you any stamps and any envelope? Avez-vous des timbres et des enveloppes? दोनों केस में प्लूरल लगाना ds. We are studying our lessons. Nous étudions nos leçons. NOS, then lesson के spelling. We like geography and history. Nous aimons l'histoire et la géographie. We do not like language. Nous n'aimons pas. N apostrophe then AIMONS. Pas les langues. We have friends at school. यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। We have some friends. Nous avons des amis à l'école. या फिर ओ लिसे लिख सकते हैं यहाँ पर। Frenchmen and Americans like freedom. Les Français, LES, then ये वाला Français, et les Américains, कैपिटल लेटर ही लिखना है उसमें भी, अमेरिका में भी, aiment la liberté. Men like money. Les hommes, LES, then HOMMES, and then MAIMENT, and then money is l'argent. ये पार्थिव सेंस नहीं है, जनरल सेंस है। डू यू हैव एनी मनी, ये पार्थिव है। आवेबू द l'argent, गिव मी सम मनी, donnez-moi de l'argent, if you please, s'il vous plaît. Children like school. Les enfants aiment l'école, l'apostrophe de l'école. Are there any schools in France also? Y a-t-il des écoles en France aussi? There are some theaters in Paris. Il y a des théâtres à Paris. Théâtre, theaters are interesting. Definite article से start करना पड़ेगा। Les théâtres sont intéressants. And last है, I'm fond of language. J'aime beaucoup les langues. Fond of, aimer beaucoup, ठीक है। और बोकू के साथ द नहीं लगाना, ध्यान रखना यहाँ पर। जेम बोकू ले लांग। आई स्टडी मैथमेटिक्स, जेत्यूती ले मैथमेटिक। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग आपको याद है ना, ये वाली ले मैथमेटिक। तो यहां तक पूरी तरह क्लियर है। अब इसमें से लेसन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। यहाँ पर कुछ लर्न करने के लिए लिखा हुआ है कि इलिया 12 mois dans une année, there are 12 months in a year। ठीक है, les mois de l'année sont, the months of the year are janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre एंड दिसंबर। इस ढंग से लेसन 2 मॉड्यूल 2 का पूरा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।